Once you know हो क्या रहा है, it becomes much easier to change. Neuro-linguistic programming brain through language. Deep understanding आती है अपने मुतालिक, अपनी ज़ात के मुतालिक और दूसरों के मुतालिक. This is one of the first things in my courses. ये जो चीज़ I have used one of your techniques in my sales and it closed. अब लगता है कि जो मेरा एक स्किल लेवल है शायद मुझे वो पहले महसूस नहीं हो रहा था. क्योंकि I feel like I need it. Because I can. Look, I am way better than I thought I would be, you know. If you're getting training in Pakistan, I want to recommend that you train with Kamran. Kamran Sultan. He is fantastic, and I highly recommend him. Highly recommend. If you want to learn NLP, learn from the best in Pakistan. Learn from Kamran. I transformed as a human being, as a mother. मेरी parenting बहुत improve हुई with my daughters. My relationship improved. इसके अलावा मेरे husband के साथ मेरे relationships बहुत improve हुए. यहाँ से अपनी लाइफ को पीछे की तरफ देखता हूँ 5 साल पीछे की, और आज जब मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो एक डिफरेंट इंसान की सूरत में अपने आप को देख रहा हूँ. Hello, this is Dr. Richard Bandler. This is John Laval. I'm the president of the Society of NLP with Richard Bandler. Hi, I'm Owen Fitzpatrick, co-author of the book Memories with Dr. Richard Bandler and co-founder of the Irish Institute of NLP. And I'm very delighted to highly recommend Kamran Sultan of the First Institute of Dynamic Learning in Pakistan. Kamran is someone that I've seen train. I've worked with him and taught a workshop with him in Pakistan. And he's someone that has exquisite skills, one of the best NLP trainers I've seen. And it's an honor to work with someone of his caliber. The thing about Kamran Sultan, he is fantastic, and I highly recommend him for doing his seminars in your country. And I also want to say that he's been doing NLP for quite a long time, actually. Was trained by Richard many, many years ago. He's come to the United States to update his training, and he's really a great guy. If you've got the opportunity to study with someone like him, like Kamran in Pakistan, in NLP, you won't find any better. So I highly recommend, if you want to learn NLP, learn from the best in Pakistan, learn from Kamran. Okay? So, go see Kamran Sultan. He's a great guy, and he does fantastic programs. And if you're getting training in Pakistan, I want to recommend that you train with Kamran. Okay, so Richard Bandler, John Grinder ने जब Milton Erickson को study किया, and as I told you, Milton Erickson जो था, he was a hypnotist. He was the best hypnotist who has ever lived. उसकी एक quality ये थी कि जब वो लोग उसके पास जाते और कोई शख्स अपना कोई प्रॉब्लम बताता है किसी किस्म का, तो वो उनको अक्सर कहानियां सुनाना शुरू कर देता, स्टोरीज सुनाना शुरू कर देता. इनफैक्ट मिल्टन एरिक्सन की एक किताब है जिसका टाइटल है टीचिंग टेल्स ऑफ मिल्टन एच एरिक्सन, माय वॉइस विल गो विद यू. Okay, the My Voice Will Go With You is the name of the book, और उसका जो subtitle है, that's Teaching Tales of Milton H. Erickson. So I think Sidney Rosen has written that book with Milton, and the author writes in that book, and Milton से किसी ने पूछा कि like what allows you to change people? There are lots of people who have benefited through your work. What allows you to do that? And he said, their willingness to tell me stories. वो लोगों को बहुत सारी कहानियां सुनाता था. तो यहाँ पर मैं अभी उसकी स्टोरीज के ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन मिल्टन एरिक्सन की एक जो क्वालिटी थी, वो क्वालिटी ये थी कि मिल्टन एरिक्सन लैंग्वेज को एक बड़े खास अंदाज में, एक खास पैराए में इस्तेमाल करता था. रिचर्ड बैंडलर और जॉन रेंडर ने
उसका वो जो लैंग्वेज को इस्तेमाल करने का अंदाज था, उसको एक कम्युनिकेशन मॉडल डेवलप किया उसके ऊपर, और उस मॉडल को मिल्टन मॉडल का नाम दिया जाता है। मिल्टन मॉडल एक बहुत इन डेप्थ मॉडल है। जैसा मैंने कहा कि इवन अगर आप मेरी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग में हो तो हमारा तकरीबन 3 से 4 सेशंस, 3 घंटे के जो सेशंस हैं वो सिर्फ मिल्टन मॉडल के ऊपर गुजरते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ मैं आपको उसकी वो चीजें बता रहा हूँ दैट अगर आप उनको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आप खुद अपनी जिंदगी में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बड़ी पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। हम एक चीज एनएलपी में कहते हैं कि ऑल प्रॉब्लम्स आर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। आपकी इंटेंशंस अच्छी होती हैं, कभी बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ आप कोई बात किसी को कहते हैं, बट सामने वाला जो है उसको बिल्कुल दूसरे अंदाज से, सो इवन तो आपकी इंटेंशन अच्छी थी बट आपकी कम्युनिकेशन उसके लिए अच्छी नहीं थी, सो आपका जो अंदाज था उसकी वजह से वो बात जो थी कहीं से कहीं हो गई। और ऐसा ये हमारे साथ भी हो सकता है कि किसी दूसरे की इंटेंशन बहुत अच्छी हो मगर उसका अंदाज, उसकी जो लैंग्वेज का सिलेक्शन था वो इतना अच्छा नहीं था, नतीजतन हमारे अंदर कोई मनफी जज्बात आ गए। सो मिल्टन एरिक्सन जो था, just hold on for a moment, by the way. So मिल्टन एरिक्सन जो था, he used language in very artfully vague way. तो उसके जो मॉडल है उसे मिल्टन मॉडल कहा जाता है। बाय द वे रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर ने एनएलपी को एनएलपी का नाम देने से पहले 4 किताबें लिखी थी। उनमें से 2 किताबें जिनका नाम है hypnotic techniques of Milton H. Erickson, okay, patterns of hypnotic techniques of Milton H. Erickson. So वो ये पैटर्न 1 और पैटर्न 2 के नाम से किताबें मशहूर हैं। ये रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर की किताबें हैं। सो इन किताबों में इसकी जो वॉल्यूम 1 है उसके अंदर आपको मिल्टन मॉडल जो है वो बहुत तफसील में मिलेगा। मैं आपको एक उसका ब्रीफ खाका आपके सामने रख रहा हूँ, और ये पैटर्न्स जो हैं, इन पैटर्न्स को मैं इवन प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग में भी ये चीज मैं बताता हूँ लोगों को कि जब हम इनको सीखते हैं तो हम एक एक पैटर्न को, लैंग्वेज पैटर्न को इंडिविजुअली समझते हैं। जैसे अगर फर्ज करो एक खाने की आपने रेसिपी समझनी है, तो खाने की रेसिपी में आपने एक एक मसाले के अलग अलग आपको कौन सा मसाला है, किसका नाम क्या है, कितना पड़ता है, आपको एक एक मसाला अलग अलग समझना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये बोलें कि जी क्या खाली मैं मसलन नमक खा लूंगा तो मुझे इसका खाने का मजा पता चल जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर मैं खाली मिर्च खा लूंगा तो मसाले को मुझे टेस्ट पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा। लेकिन वो एक चुटकी नमक जो है उस खाने के टेस्ट को कुछ से कुछ बना देता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम इन लैंग्वेज पैटर्न्स को समझते हैं, क्योंकि हम इसको समझना चाह रहे हैं कॉन्शियस लेवल पे, तो हम उसको इंडिविजुअली एक एक पैटर्न को अलग अलग लेके चलते हैं। लेकिन इनका जो असल पावर होता है वो जब हम इन्हें कंबाइन करके यूज करते हैं। तो मैं अभी आपके सामने आई शेयर सम ऑफ द मोस्ट यूजफुल पैटर्न्स फॉर यू, और उन पैटर्न्स के आई गिव यू सम एग्जांपल्स एज वेल। सो अगर किसी के जहन में ये सवाल आए कि क्या खाली ये बात कर लेने से या ये कह देने से कुछ हो जाएगा, मैं अभी आपको बता दूं कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप इसको कंबाइन करके इस्तेमाल करेंगे, एंड आई शो यू, आई गिव यू एग्जांपल्स ऑफ यूजिंग देम इन कॉम्बिनेशंस, एंड देन यू विल सी कि क्या कर सकते हैं। ओके, सो हियर इज मिल्टन मॉडल इन ब्रीफ। हमारे पास एक पैटर्न है जिसे हम कहते हैं एनएलपी की जुबान में माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग से बाय द वे हमारी मुराद ये नहीं होती है जिससे कोई टेलीपैथी या उस किस्म की कोई चीज समझे। माइंड रीडिंग लिंग्विस्ट्स ऐसे लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जब कोई बात करने वाला इस अंदाज से बात कर रहा हो कि जैसे वो जिसके बारे में बात कर रहा है उसकी सोच क्या है, उसकी चाहत, उसकी पसंद नापसंद क्या है। मसलन अगर फर्ज करें मैं कहूँ मेरा दोस्त आइसक्रीम खाना पसंद करता है, तो मैं बात कर रहा हूं इस अंदाज से जैसे मुझे मालूम है कि मेरा दोस्त क्या पसंद करता है। अगर फर्ज करें मैं कहूँ मेरा दोस्त चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करता है, तो आई एम स्पीकिंग एज इफ आई नो कि मेरे दोस्त को आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर पसंद है। ओके, इसी तरह अगर फर्ज करो मैं बोलूं कि इमरान खान सोचता है, सो एज इफ आई नो कि इमरान खान क्या सोचता है। नवाज शरीफ चाहता है, एज इफ आई नो कि नवाज शरीफ क्या चाहता है। सो जब हम बात करें किसी भी शख्स का जिक्र करते हुए कि फलाना शख्स सोचता है, चाहता है, ये पसंद करता है ना, सो द स्पीकर इज स्पीकिंग एज इफ ही और शी नोज
कि जिसके बारे में वो बात कर रहा है उसकी चाहत क्या है, उसकी पसंद क्या है। मेरा बेटा सोचता है, मेरी बेटी सोचती है, मेरे मोहल्ले वाले सोचते हैं, मेरे दोस्त सोचते हैं, मेरे खानदान वाले, मेरे इन लॉज, मेरे पेरेंट्स, वॉट एवर दैट मे बी। सो कोई क्या सोचता है, कोई क्या समझता है, कोई क्या चाहता है, क्या पसंद करता है, जब इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हो, ऐसे स्टेटमेंट्स को लिंग्विस्टिक्स जो है, लिंग्विस्ट जो है, ये माइंड रीडिंग स्टेटमेंट्स कहते हैं। ओके, सो अगर फर्स्ट करें मैं बोलूं you want to learn hypnosis, so I am speaking as if I know what you want to do. Okay, आप hypnosis सीखना चाहते हैं और आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं और आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोगों को इन्फ्लुएंस करें। अब आप गौर करेंगे जितने स्टेटमेंट्स मैंने बोले, कि मैं बात कर रहा हूं एज इफ मुझे पता है आप क्या चाहते हैं। ओके, इसी तरह अगर मैं बोलूं आपको तो मालूम है, ओके, आपको तो मालूम है, आपको तो मालूम है एनएलपी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको तो मालूम है हिप्नोसिस कितनी जरूरी चीज है सीखने के लिए, आप तो जानते हैं कि ये सारी चीजें जिंदगी में कितनी पॉजिटिव चेंज लाती हैं। सो आई एम स्पीकिंग एज इफ आई नो व्हाट यू नो। मैं ऐसे बात कर रहा हूं जैसे मुझे ये मालूम है कि आपको क्या मालूम है। आपको तो मालूम है कि एनएलपी बहुत जरूरी है। ओके, सो आई एम स्पीकिंग एज इफ आई नो दैट यू नो समथिंग। ओके, सो ये स्टेटमेंट्स जो है ये माइंड रीडिंग स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। ओके, सो इसी तरह अगर मैं बोलूं आपको तो पता है पीटर कितना खराब आदमी है, दैट्स आल्सो माइंड रीडिंग। सो आई एम स्पीकिंग एज इफ आई नो कि आपको पीटर के बारे में कुछ इल्म है। ओके, एंड पीटर एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है। सो दैट्स इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये माइंड रीडिंग स्टेटमेंट्स है। माइंड रीडिंग के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पैटर्न है इट्स कॉल्ड लॉस परफॉर्मेटिव। लॉस परफॉर्मेटिव इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स, जब किसी चीज के बारे में कोई जजमेंट दिया जा रहा हो, किसी किस्म का कोई जजमेंट दिया जा रहा हो बगैर इस चीज को बताए कि ये जजमेंट किस बेसिस पे दिया जा रहा है। ओके, मसलन अगर फर्ज करें मैं कहता हूं ये बेहतरीन ग्लासेस है। ओके, बेहतरीन जब मैंने कहा तो मैंने एक जजमेंट दे दिया। अगर मैं कहता हूं कि ये चश्मा है तो इसमें कोई जजमेंट नहीं है, एक चश्मा है, एक अंडरस्टूड चीज है, सब हम इसको चश्मा कहते हैं। लेकिन मैं कहूँ ये बेहतरीन चश्मा है, अब मैंने इसके ऊपर एक जजमेंट, या मैं कहूँ जी बकवास तरीन चश्मा है, मैंने जजमेंट दे दिया। ओके, मैंने कहा ये एक सस्ता है चश्मा है या महंगा चश्मा है, मैंने एक जजमेंट दे दिया कि मैंने इसको सस्ता या महंगा किस लिहाज से, किसके मुकाबले में सस्ता है, किसके ख्याल में सस्ता है, किसके ख्याल में महंगा है, ये मैं एक राय दे रहा हूँ, एक जजमेंट दे रहा हूँ, मगर मैं ये नहीं जाहिर कर रहा कि ये किसकी बेसिस पे कर रहा हूँ। सो अगर जब कोई शख्स ऐसी बात करता है फलाना काम करना बहुत अच्छी चीज है या फलाना काम बहुत बुरी चीज है, वो बोलने वाला जो है वो जजमेंट दे रहा है कि फलाना बहुत अच्छा लीडर है, फलाना बहुत बुरा लीडर है, फलाना बहुत नेक है, फलाना बहुत बद है, सो जब इस किस्म की स्टेटमेंट्स दी जा रहे हो ये स्टेटमेंट जो है ये लॉस परफॉर्मेटिव्स कहलाते हैं। अब मैं खाली पहला माइंड रीडिंग और लॉस परफॉर्मेटिव की आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको तो मालूम है ये बेहतरीन चश्मा है, आप तो जानते हैं कि ये चश्मा जो है ये दुनिया का सबसे अच्छा चश्मा है। मेरा भाई कहता है कि ये चश्मा सबसे अच्छा है। मेरे भाई के ख्याल में ये चश्मा सबसे बेहतरीन चश्मा है। ओके, सो मेरे भाई के ख्याल में दैट्स माइंड रीडिंग, ये बेहतरीन चश्मा है, दैट्स लॉस परफॉर्मेटिव। सो खाली मैंने अभी दो पैटर्न्स को यूज किया है। ओके, नाउ लेट्स सी, हमारे पास वी हैव मोर पैटर्न्स हियर। हमारे पास जो नेक्स्ट है पैटर्न, दैट्स व्हाट वी कॉल कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट बेसिकली ये बिलीफ स्टेटमेंट्स होते हैं, ये सूडो लॉजिकल है, यानी जब हम दो चीजों को, एक चीज को दूसरी चीज की वजह बनाते हैं। मसलन मैं अगर बोलूं आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि मैंने ये रिकॉर्ड किया। ओके, आप इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। आप ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि मैंने ये चश्मा पहना हुआ है, आप ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई है। ओके, इट्स लाइक आप गौर करो, ये स्टेटमेंट्स जो है दे साउंड लॉजिकल बट देयर इज नो लॉजिक इन दिस। ओके, आप मेरी बात सुन रहे हैं क्योंकि मैं पानी पी रहा हूं। ओके, मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैंने पानी पिया है। सो एक काम करने की वजह से कोई दूसरा काम, मेरे पानी पीने की वजह से उसको गुस्सा आया, मौसम तब्दील होने की वजह से
मेरी तबीयत खराब हुई, ठंडा पानी पीने की वजह से मेरा गला खराब हुआ, मेरे माजी के तल्ख तजुर्बात की वजह से मेरे अंदर तलखी आ गई, फलाने शख्स के फलाने रवैये की वजह से मेरे अंदर फलानी मनफी चीज बैठ गई। सो किसी चीज की वजह से कोई दूसरी चीज, सो हम दो चीजों को आपस में जब कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं, सो ये जो चीज है ये सूडो लॉजिक है। ओके, देयर इज नो लॉजिक इन इट, मगर इट साउंड्स लॉजिकल। ओके, आप इट्स लाइक आप मुझसे एनएलपी इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट it sounds as if there is some kind of logic in this. So जब हम किसी भी चीज को इस किस्म के स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ये कहलाते हैं cause and effect statement, one thing causing the other। अब मैं 3 पैटर्न्स जो अभी तक हमने किए, माइंड रीडिंग, लॉस परफॉर्मेटिव एंड कॉज एंड इफेक्ट, मैं इन तीनों को कनेक्ट करूंगा। अच्छा, एक और चीज कि हम इवन तो इनको जब सीखते हैं किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस में सीखते हैं, लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं तो इसमें सीक्वेंस की कोई कंडीशन नहीं है। ओके, हम इसमें माइंड रीडिंग पहले कर सकते हैं, उसके बाद हम कॉज एंड इफेक्ट पे आ सकते हैं, फिर लॉस परफॉर्मेटिव, इट डजंट मैटर। अब और फर्ज कीजिए कि आई एम सेलिंग समथिंग, ओके, और मैं इसको अपने बिजनेस में अपने सेलिंग के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। सो लेट्स सपोज आई एम सेलिंग दीज ग्लासेस, ओके, एंड आपको तो पता है आप चाहते हैं कि आपको सबसे बेहतरीन ग्लास मिले, और आपको मालूम है अच्छे ग्लासेस जो होते हैं उनकी एक पहचान ही होती है कि जब आप उस पर टक करें तो ये जो आवाज है ये आपको बताती है ये अच्छी क्वालिटी है, और इसी वजह से आप इस ग्लास को लेना चाहते हैं, बिकॉज आपको तो इसकी पहचान हो चुकी है। अब आप गौर कीजिए मैंने क्या किया, कि आप बेहतरीन ग्लास लेना चाहते हैं, दैट्स माइंड रीडिंग। ओके, आपको पता है अच्छे ग्लास की ये पहचान होती है, दैट्स माइंड रीडिंग। और व्हेन आई एम डूइंग दिस, ओके, सो आई एम गिविंग यू a judgment thing, with this case में ये आवाज है, so this is right, एंड देन आप ये लेना चाहते हैं क्योंकि आपको अच्छे ग्लास की पहचान है। सो इट डजंट मैटर। सो फॉर एग्जांपल इसी तरह अगर फर्ज करो, आपको पता है एक अच्छा लीडर वो होता है जो लोगों की परेशानियों को समझता हो, वो लीडर जिसने लोगों की के अंदर गया हो, जिसने लोगों को देखा हो, जिसने उनकी गुर्बत को खुद एक्सपीरियंस किया हो, और वही लीडर है जिसको आप अपने मसाइल समझा सकते हैं, जो आपके मसाइल समझ सकता है। और आपने देखा है कि हमारे जो कैंडिडेट साहब हैं, ये वो तमाम तकलीफें वो जिनसे आज गुजर रहे हैं आप, ये उनसे गुजर चुके हैं, लिहाजा ये बेहतरीन कैंडिडेट है। नोटिस दैट आई एम जस्ट यूजिंग 3 पैटर्न्स हियर, मैंने अभी 3 से ज्यादा नहीं किए। आपको पता है देयर आर अबाउट 29 डिफरेंट पैटर्न्स जो खाली प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग में हम करते हैं, but there's a lot more. So ये अभी मैंने खाली 3 की बात की। Let's add another one. Then चौथा जो हमारे पास पैटर्न है, it's called complex equivalence. आपको ये टेक्निकल नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इन पैटर्न्स को समझ लीजिए, it will help. Complex equivalence जब हम दो चीजों को बराबर, this means that, okay, तुम देर से घर आए हो इसका मतलब है तुम्हें हमारी परवाह नहीं है, this means that. Okay? तुमने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया इसका मतलब है तुम सुस्त आदमी हो। Okay? This means that. तुमने तुम्हारा स्कूल में रिजल्ट अच्छा आया है इसका मतलब है तुम जिंदगी में कामयाब हो गए। This means that. जब हम किसी चीज को इसका मतलब ये है। Okay? आप NLP सीख रहे हैं इसका मतलब है आप अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं। आप इस वक्त बैठे हुए इस वीडियो को देख रहे हैं और ये सारी चीजें सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एक समझदार इंसान है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। अब मैं जो 4 पैटर्न्स हैं, माइंड रीडिंग, लॉस परफॉर्मेटिव, कॉज एंड इफेक्ट एंड कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंस, मैं इन 4 पैटर्न्स को इस्तेमाल करूंगा। अब आप गौर कीजिए हाउ दे वर्क। एंड फर्स्ट कीजिए, अगेन आई एम सेलिंग दिस, ठीक है, ओके। सो आप चाहते हैं कि आपके घर में अच्छी क्रॉकरी हो, अच्छे ग्लासेस हो, कि जब लोग आए और वो देखें तो लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपके टेस्ट को सराहें, और ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी समझदार इंसान में ये चीज होती है और वो चाहता है कि लोग उसकी चीजों को सराहें
और ये चीज आपके अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है। इसी वजह से आप मेरी दुकान पर आए हैं और आपने इन ग्लासेस को देख रहे हैं। और क्योंकि जब आप ये ग्लासेस लेकर जाएंगे आप खुद देखेंगे कि लोग आपकी जितनी तारीफ करेंगे, क्योंकि जाहिर है आप ये ग्लास ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको अच्छी चीजों की कदर है। ओके, आई एम जस्ट यूजिंग दीज पैटर्न्स एंड रिमेंबर आई एम जस्ट मेकिंग इट अप राइट नाउ। और मैं इसको किसी भी चीज में ले जा सकता हूँ। अगर फर्ज कीजिए कि आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, okay? बेटा तुम माशाल्लाह बहुत समझदार बच्चे हो, तुमने बड़ी मेहनत की है, कि तुम्हारा रिजल्ट पहले बहुत अच्छा नहीं आया था लेकिन इस दफा बहुत अच्छा है, इसका मतलब है तुम बहुत मेहनती बच्चे हो। और जो बच्चे मेहनत करते हैं वो जिंदगी में बहुत कामयाब होते हैं। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। अगर फर्ज कीजिए कि हम अपने रिलेशनशिप्स में इस्तेमाल करें, ओके, बेगम मुझे मालूम है तुमको मुझसे बहुत मोहब्बत है, माइंड रीडिंग, ओके, और इसी वजह से, इसी मोहब्बत की वजह से तुम मेरे लिए इतना काम करती हो, तुम रोजाना मेरे लिए खाना बनाती हो, नाश्ता तैयार करती हो, बच्चों के लिए इतना कुछ करती हो। इससे साफ जाहिर है कि तुमको मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। और यू नो व्हाट, इसका मतलब है कि तुम एक बहुत अच्छी औरत हो। दिस मीन्स दैट जब हम चीजों को माने देते हैं किसी चीज का, जस्ट होल्ड फॉर अ मोमेंट, सो दिस मीन्स दैट हम किसी भी एरिया में, ये जो लैंग्वेज पैटर्न्स हैं ये किसी एक एरिया तक महदूद नहीं है। ये खाली ये नहीं है कि मैं हिप्नोसिस में किसी को हिप्नोटाइज करने के लिए यूज कर रहा हूँ। अगर फर्स्ट करो मैं इसको हिप्नोसिस में यूज करना चाह रहा हूँ, ओके, सो आप मेरे पास आए हैं और आप ज्यादा अच्छे, ज्यादा डीप ट्रांस में जाना चाहते हैं और आपने मुझे अभी अपने प्रॉब्लम्स बताए हैं। इसका मतलब है कि आप के अंदर चेंज होने की सलाहियत है और आप उस चेंज होने की विलिंगनेस है, एंड यही बेसिक कंडीशन है इंसान को अपनी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए। सो अब टेक अ नाइस लॉन्ग डीप ब्रेथ। जैसे जैसे आप एक लंबी सांस लेंगे यू विल फाइंड कि आप सांस निकालते हुए आपके अंदर एक रिलैक्सेशन का एहसास आता चला जाएगा, जिसका मतलब है कि आप अब मजीद डीप और रिलैक्स कैफियत में जा सकते हैं। एंड एज यू आर गोइंग डीपर एंड डीपर you will find that you're feeling better and better. Okay, loss performative, you are feeling better than what? Okay, that's a deletion. So this is not limited to any one specific context. Notice this, I'm just giving you some examples कि आप इसको अपनी personal life में, अपनी professional life में, आप जिंदगी के किसी भी area में use कर सकते हैं। Then next we have what we call presuppositions. Presuppositions जो हैं बुनियादी तौर पे हर जुमले में presuppositions होती हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर में इंशाल्लाह जब मेटा मॉडल करेंगे you will see। लेकिन presupposition क्या है? कोई भी ऐसी बात जो बगैर कहे सुनने वाला एक्सेप्ट कर ले। प्रीसपोजिशन इंग्लिश लैंग्वेज में 121 तरीके से मुख्तलिफ प्रीसपोजिशंस इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर फर्ज कीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी समझ कि मैं सुबह में वॉक के लिए निकला तो मैं पार्क जाना था मुझे वॉक करने के लिए, तो मेरे समझ नहीं आ रहा था मैं अपनी लाल वाली गाड़ी निकालूं या नीली वाली। तो मैंने जब लाल वाली की चाबी उठाई तो फिर मुझे ख्याल आया क्यों ना आज मैं पीली वाली ले जाऊं। सो व्हाट एम आई एक्चुअली सेइंग कि मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, एक लाल है, एक नीली है, एक पीली है, ओके, और मैं वॉक पे जाने के लिए मैं गाड़ी में जाता हूं पहले और मैं पार्क जाके वॉक करता हूँ। सो ये वो चीजें जो मैंने कही नहीं मगर सुनने वाले ने खुद ब खुद सुन ली। ओके, वैसे कुछ लोग बात करते हैं ना जब मैंने अपना पहला हज किया, ओके, वो क्या बता रहा है कि मैंने एक से ज्यादा हज किए हैं। ओके, इसी तरह अगर फर्ज करो अब प्रीसपोजिशंस जो हैं देयर आर मेनी डिफरेंट वेज, एज आई सेड कि 121 डिफरेंट वेज हैं जिसमें प्रीसपोज किया जा सकता है। कोई इंश्योरेंस कंपनी वाला आपको फोन करेगा, जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं फलाना बात कर रहा हूँ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से, आपसे मिलने के लिए आपके फलाने दोस्त ने आपका मुझे नाम दिया था, तो मैं आपके पास आना चाह रहा था कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट जिंदगी की तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, तो मैं आपके पास कल सुबह 10 बजे आ जाऊँ, दोपहर 2 बजे या शाम 5 बजे। ओके, दिस इज कॉल्ड इल्यूजन ऑफ चॉइस। सो तो जहन जो है सुनने वाले का इन मेजॉरिटी केसेस जाएगा सुबह मैं 10 बजे क्या कर रहा हूँ, दोपहर 2 बजे क्या कर रहा हूँ, शाम 5 बजे क्या कर रहा हूँ। ओके, वो वॉट एवर ही सेलेक्ट्स उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि वो
इस इंश्योरेंस एजेंट से मिल रहा है। ओके, तो आप पेमेंट कर रहे हैं, आप चेक से पेमेंट करेंगे या कैश से? वो जैसे हम करते हैं ना, चाय पियेंगे या ठंडा? ओके, कुछ लोग होते हैं जी चाय आने तक ठंडा ले आए। ओके, but that's presupposition, that's called illusion of choice. Okay, so do you want me to pack this glass, गिफ्ट रैप कर दूं मैं आपके लिए, या इसकी जो नॉर्मल पैकिंग है उसके अंदर आप ले जाएंगे? प्रीसपोजिशन क्या है कि आप ये ग्लास लेकर जा रहे हैं, सिर्फ सवाल ये रह गया कि आपको गिफ्ट रैप में चाहिए या इसकी नॉर्मल रैपिंग में चाहिए। ओके, सो अब अगर फर्स्ट करो मैं इनको कंबाइन करता हूँ, सो माइंड रीडिंग, लॉस परफॉर्मेटिव, कॉज एंड इफेक्ट, कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंस, प्रीसपोजिशन। Okay, अब आप गौर करो, it's like how powerful this is becoming. And let's say I'm using it in the context of hypnosis. Okay, so you've come to me and you want to be hypnotized for some issue you want to work on, and I say, okay, now take a nice long deep breath, and as you exhale, just allow yourself to relax. Because as you relax, you will find yourself going deeper, and that means that you are opening up yourself for being able to follow every suggestion that I give you. Your conscious mind may or may not understand everything that I say. Your unconscious mind will follow everything. You may even forget some of the things consciously, while you will remember everything unconsciously, which is fantastic. Because that means your conscious mind doesn't have to do anything. Your conscious mind may even go to sleep, while your unconscious mind can continue to follow my instructions. Okay, so I've just used combination of these. Okay, it's good thing that's loss performative. You are a great hypnotic subject, that's a loss performative. You can follow my instructions. You can continue to follow my instructions. Okay, you may forget consciously while remember unconsciously. I'm presupposing that you have a conscious mind and you have an unconscious mind. Okay, अच्छा अगर फर्स्ट कीजिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ, लेट्स से ट्रेनिंग के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, आप एनएलपी सीखना चाहते हैं और ये बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज जब आप एनएलपी सीखेंगे आप देखेंगे आपकी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव तब्दीलियां आएंगी। वो तब्दीलियां जो आप सालों से लाना चाह रहे थे मगर नहीं ला सके थे, वो पॉजिटिव चेंजेस, वो इम्प्रूवमेंट्स जो आप आपको सालों से आप लाने की कोशिश कर रहे थे मगर आप उसमें कामयाब नहीं हो सके थे, यू विल फाइंड कि आप जैसे जैसे एनएलपी को सीख रहे हो और इन चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी एक तो इन चीजों को सीखने की ख्वाहिश मजीद बढ़ती चली जा रही है, आप इन चीजों को मजीद इन डेप्थ समझना चाह रहे हैं, इन चीजों को और ज्यादा जानना चाह रहे हैं, एंड इन चीजों को जानने की वजह से जैसे जैसे आपकी जिंदगी में इंप्रूवमेंट आ रही है, आपको खुद महसूस होगा कि किस तरह से आपकी जिंदगी, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ विल गेट बेटर एंड बेटर, व्हिच इज अमेजिंग. That's exactly what you want. And so since you are here, this means that you are ready to learn. This means that you're ready, you're open to learn. Okay? Irrespective of what happened in your past, the fact is you are here listening to this right now, sitting here listening to my voice. You are ready to move forward in your life. I've just used these patterns, by the way. अगर आप गौर करें मेरे जुमलों को, लेकिन अब हो क्या रहा है, मैं इतनी रैपिडली जुमले डिलीवर कर रहा हूँ और इस कॉम्बिनेशन में कर रहा हूँ कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसको प्रोसेस नहीं कर पाए, और मेरी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इजीली आपके अदर माइंड को they can bypass that. Okay, so and I'm actually simply using only 4 or 5 of these patterns. Assalamu alaikum everyone. I hope you're enjoying this. I hope you're what you're learning makes sense to you. As I mentioned in the beginning, ये जो language patterns हैं, इनको जब हम सीखते हैं तो हम एक एक पैटर्न अलग अलग सीखते हैं. ओके, और जब हम इनको सीखते हैं इनकी इट्स लाइक बिकॉज ये बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स हैं, और मैंने जो मिसाल इसके अंदर दी है मैं अपनी तमाम क्लासेस में ये मिसाल देता हूँ कि जब आप जैसे आप किसी खाने की अगर रेसिपी समझना चाह रहे हैं तो आपको हर मसाला अलग अलग पता होना चाहिए.
और लेकिन जब आप उसको आप अगर आप खाली कोई बोलें जी इस खाली एक मसाले को खा लेने से क्या होगा, खाली नमक खा लेने से क्या होगा, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन जब आप उन मसालों को मिक्स करते हैं तो फिर आपको पता चलता है एक डिश तैयार होती है। यहाँ जो लैंग्वेज पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, these are, and remember these are just few, we are not even touching the tip of the iceberg. Okay, this is barely an introduction. So but as you use these in your language, in your communication, you'll find you become more effective, more influential. और मैं यहाँ पर आपको जो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ कि यू कैन यूज देम इन योर पेरेंटिंग, यू कैन यूज देम इन योर बिजनेस, यू कैन यूज देम इन योर रिलेशनशिप्स, यू कैन यूज देम इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। एक मेजर इशू जो हमारे साथ होता है वो ये होता है कि हम जब बातचीत कर रहे होते हैं तो हमें शऊरी तौर पर इस चीज का अंदाजा ही नहीं होता कि हमारी कम्युनिकेशन का इफेक्ट क्या हो रहा है। हम अपनी अच्छी इंटेंशंस के साथ कोई बात करते हैं, बिकॉज इफ यू रिमेंबर लास्ट जो हमारा सेशन था पावरफुल बिलीफ्स ऑफ एनएलपी, उसके अंदर एक चीज हमने बात करी थी, दैट मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गेट। सो इट्स नॉट व्हाट आई से, but it's how other people are responding. That is what really matters. So as you are communicating with people and they're not responding the way you want them to respond, you need to change. You need to have more flexibility in yourself. और यही चीजें, that's a skill, by the way, that takes some time and it requires number of exercises, practicing, skills. So लेकिन as I said in the beginning, यहाँ पे we are not going to run any exercises, but it will give you some idea of what language can do. If you want to learn, if you want to understand this deeply, आप चाहते हैं कि आप इसको इस्तेमाल कर सकें अपनी जिंदगी में, personally, professionally, to make yourself better, to make your relationships better, to make your life better, you may, join my NLP practitioner training. I have a training coming up in May. You can join that. Ramzan can share those details with you quickly. Okay, Ramzan, just quickly, just share that, because we have a lot of training left today, and then we have another bonus training coming up for you. Absolutely, sir. So sharing नहीं आ रही है sir? Okay, so just a moment, Ramzan. Yeah. So जब तक मुझे शेयरिंग मिल रही है, मैं सिर्फ आपको ये अनाउंस करता चलूं कि ये लाइसेंस्ड एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग है, जो कि इंशाल्लाह इसी महीने 22 मई से 17 जून तक ऑनलाइन लाइव कंडक्ट की जाएगी जूम पर। ऑनलाइन इसलिए कह रहे हैं कि ये कंप्यूटर पे होगी, आपके जूम पर होगी, और कामरान सर इसे बजाते खुद कंडक्ट करेंगे ऑनलाइन। और इस ट्रेनिंग के अंदर ये जो कि तकरीबन 70 घंटे की ट्रेनिंग है, जहां अब बहुत सारी स्किल्स और टेक्निक्स के साथ साथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कामरान सर के सुपरविजन में आप कर रहे होंगे। तो मैं एक दफा फिर आपको इसकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट और ये सब बता देता हूं, और उसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह मैं एक और कल सेशन लूंगा आपके लिए, और इसकी मजीद इंफॉर्मेशन आप वहां से भी हासिल कर सकते हैं। आप मुझसे और कामरान सर से बराह रास्त कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग 22 मई से 17 जून तक है, मंडे टू फ्राइडे होगी 4 वीक्स के अंदर, और आखिरी वीक के अंदर ये 6 डे की क्लासेस हैं। पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से शाम 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मुनक्कद की जाएगी जूम पर। और इसका वेब का जो लिंक है पेज का, वो अभी आपको थोड़ी देर में आपके चैट बॉक्स पर आपको रिसीव हो जाएगा। जहां तक इसकी इन्वेस्टमेंट की बात है, तो वैसे देखा जाए तो इसकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 2000 पाकिस्तानी डॉलर है। 1997 करीब 2000 पाकिस्तानी डॉलर्स बनते हैं, मगर आपसे हम $2000 चार्ज नहीं करेंगे। आपके लिए आउटस्टैंडिंग आउटरेजियस हमारे पास ऑफर है। आप में से वो तमाम लोग अफराद जो इस ट्रेनिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो मुझसे या कामरान सर से बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। और हमारे जो नंबर्स हैं वो इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे होंगे। कामरान सर की जो वेबसाइट है वो आपको अभी सर ने मैसेज कर दिया होगा, प्लस सर के यूट्यूब पे चैनल पर भी आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का नंबर इस वक्त आपको नजर आ रहा है 0300 219 8031 पर भी अपने कोई भी क्वेश्चंस आप पोस्ट कर सकते हैं।
प्लस अगर आप मुझसे भी कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं एनएलपी की ट्रेनिंग्स के बारे में, लाइसेंस प्रैक्टिशनर के बारे में, तो आप मुझसे भी बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि एक और गिफ्ट हम पर ड्यू है, वो इंशाअल्लाह आज के सेशन के इख्तिताम पर हम आपको बताएंगे कि ये अगला सेशन कब होगा और उसके अंदर आप क्या सीखने वाले हैं। तो आई एम श्योर कि पिछले 3 दिनों के अंदर आप 3 दिनों से हमारे साथ कनेक्टेड हैं और आपने जो भी टाइम इन्वेस्ट किया है, आपने बहुत कुछ इसके अंदर सीखा होगा यकीनन। और आप अंदाजा लगाइए कि इन 6-7 घंटों के अंदर जो इतनी मुफीद और इतनी अहम इंफॉर्मेशन आपने हासिल की है, तो आप अंदाजा लगाएं कि जो 70 आवर की ट्रेनिंग है उसमें आप क्या क्या सीख रहे होंगे। तो इंशाल्लाह आपसे राब्ता होगा हमारा। इंशाल्लाह अगर आप ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं तो ट्रेनिंग के अंदर, अदरवाइज हमारे जो भी फर्दर सेशंस होंगे, आई होप कि आप वो तमाम सेशंस ज्वाइन कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you, Ramzan. So just a little correction. Ramzan said Pakistani dollar. We don't have Pakistani dollar. We are talking about American dollars. Okay, so but there are huge discounts available. You can contact Ramzan or contact me on my WhatsApp, and then inshallah we'll provide you all the details. So let's continue with our training today. There's a lot more coming. There is something very interesting, very powerful coming up. Pay attention, take notes, and follow this. You know, you'll find this useful. I can guarantee you. मैं जो चीजें आपके साथ share कर रहा हूँ, I have used them. I have used them for over 25 years in my life. I know how powerful they are. I'm not talking about theory. I'm talking from personal experience. Okay, pay attention, learn, take notes, and apply these things. You will find the difference. Not many. Then we have what we call universal quantifiers. Universal quantifiers ऐसे अल्फाज जब हर एक, everyone, no one, everybody, nobody, always, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स कहलाते हैं। हर वो शख्स जिसने ये ग्लास खरीदा है वो कहता है कि उसकी जिंदगी बेहतर हो गई। आप गौर कीजिए, हर वो शख्स, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, वो कहता है कि उसकी जिंदगी बेहतर हो गई। लॉस परफॉर्मेटिव, किससे बेहतर। और इसमें पिन्हा जो चीज है वो क्या है, ग्लास खरीदने की वजह से उसकी जिंदगी बेहतर हुई है, कॉज एंड इफेक्ट, इवन दो आई डिड नॉट मेंशन इट एज दैट। ओके, सो एक ही जुमले में हम बहुत सारी चीजें कहते हुए किसी के जहन में कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसी सजेशन, कोई ऐसी चीज इंस्टॉल कर सकते हैं, नॉट ओनली पॉजिटिवली बाय द वे, it can be used negatively as well. Okay, just be very clear about this. देखो, एक तलवार है या एक बंदूक है, उससे कोई डकैतियां करता है या किसी की हिफाजत करता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। ओके, सो डाकू के हाथ में भी बंदूक होती है और सिपाही के हाथ में भी बंदूक होती है। डाकू के हाथ में भी तलवार होती है और सिपाही के हाथ में भी तलवार होती है। उसमें तलवार का कोई कमाल या खुशबू नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो है, ये लैंग्वेज पैटर्न्स जो, दे आर रियली पावरफुल. You can use them to in your personal life, to help yourself, to help your children, to help your family, and you can use them in your business in a very positive way. Or some people may be using them in the wrong ways. Okay, but remember this: इस दुनिया का एक अजीब सा कानून है अल्लाह ताला का, हम जो बोते हैं ना वही काटते हैं। So, अगर हम कहीं पे नेगेटिविटी का करेंगे, हम इनको नेगेटिव इंटेंशंस के साथ करेंगे, सूनर और लेटर इट्स गोइंग टू बैकफायर। ओके, और वो जो झाड़ होता है ना, जितनी देर से काटो वो उतना कांटेदार होता है, okay? उतना ज्यादा तकलीफ दे बन जाता है। सो इसलिए व्हेन यू आर लर्निंग दीज थिंग्स, माय होप इज दैट यू यूज देम इन वेरी पॉजिटिव वे। देन यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स के बाद वी हैव व्हाट वी कॉल नॉर्मलाइजेशंस। लैंग्वेज में नॉर्मलाइजेशंस बेसिकली ऐसे अल्फाज जो बुनियादी तौर पे होते तो वर्ब्स है, okay? लेकिन उनको नाउन के तौर पे जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो नॉर्मलाइजेशंस बन जाते हैं, उन्हें नॉर्मलाइजेशंस कहा जाता है। सो और मैं अभी एक जुमला आपके सामने बोलूंगा, उस जुमले में आप गौर कीजिए, कोई भी सुन रहा हो वो उस जुमले को अपनी जात पर अप्लाई कर सकेगा। ओके, एंड आई एम जस्ट मेकिंग इट अप राइट नाउ। आपकी जिंदगी में चंद मसाइल हैं और
आपने अपनी सी तरह तरह की कोशिश की है उसको सॉल्व करने की, लेकिन अभी तक आपके पास उसका कोई वाज़ेह हल नहीं आया। आपने बहुत सारी चीज़ें कोशिश की, आपने कभी ये किया कभी वो किया, लेकिन कोई वाज़ेह हल आपके सामने नहीं आया। आज लेकिन आप यहाँ बैठे हुए ये तमाम चीज़ें सीख रहे हैं, ये चीज़ें सुन रहे हैं, और अब आप देखेंगे कि आपके जहन में नए हल आना शुरू हो गए। अब गौर कीजिए, आई हैव नॉट सेड एनीथिंग, बट योर माइंड विल मेक कनेक्शन टू दिस। मेरे जो बाय द वे अभी जो मैंने जुमला बोला, who can understand this? Okay, type 1 if you can understand. आपकी जिंदगी में कुछ मसाइल हैं जिनका हल आपने तरह तरह से कोशिश की है। अब्दुल रहमान से टू, अब्दुल रहमान मेरा एक बहुत पुराना स्टूडेंट है, इसके साथ मसला इसको कुछ समझ नहीं आता इसीलिए इतने साल से स्टूडेंट है। okay. So, अब आप गौर करो, ये जो मैंने बात कही है ना, ये वो स्टेटमेंट है जो बेसिकली बाबे जी बोलते हैं। तो पाकिस्तान में हमारे यहाँ बहुत सारे बाबे होते हैं ना, ये हाँ जी तुमने बड़े मसले हैं, तुम्हारी जिंदगी में बहुत मसले हैं। यार एक बात मुझे बताओ, कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास कोई जो है बड़ा सेहतमंद हो तो वो जाए, ये डॉक्टर साहब बड़ी आपकी मोहब्बत याद सता रही थी तो मैं आ गया? भाई डॉक्टर के पास वही जाता है जो बीमार होता है। ओके, ये जो बाबे होते हैं उन बाबों के पास भी वही जाता है जिसको कोई परेशानी होती है। अब बाबा जो है ना कहता है हाँ जी हाँ बेटा तुम परेशान हो, उसका जहन क्या कहेगा? जी बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके, तुमने अपनी बड़ी कोशिश की है, एग्जैक्टली, वो मसला हल तुम्हारा नहीं हुआ, एग्जैक्टली। ओके, इसीलिए अब तुम हमारे पास आ गए हो। जी जी यार बाबा बिल्कुल दिल का हाल जानते हैं बाबा। ओके, मेरे एक लफ्ज कहने से पहले बाबा ने सब कुछ बता दिया। ओके, सियासी जमात वाले आपके साथ कैसे यूज करते हैं? आपकी जिंदगी के बड़े मसाइल हैं, आपके मसाइल का अगर कोई हल इस वक्त आपको चाहिए, कोई मुखलिस रहनुमा। मुखलिस रहनुमा कौन होगा, कैसा होगा? दैट्स ऑल। ये सारी जो अल्फाज बाद में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये नॉर्मलाइजेशंस की एग्जांपल्स हैं। ओके, तो आपको एक मुखलिस रहनुमा चाहिए, एक ऐसा रहनुमा जो आपके मसाइल को समझता हो और जो आपके मसाइल को अब उस मजमे में एक पानी की वजह से परेशान है, एक बिजली की वजह से, एक स्कूल ना होने की वजह से, एक अस्पताल ना होने की वजह से, लेकिन हर सुनने वाले का जहन जो है लफ्ज मसला इसको अपने अपने अंदाज से इंटरप्रेट करेगा और उसको अपने अपने अंदाज से इंटरप्रेट करके, और उसको ऐसा लगेगा लाशऊरी तौर पे अनकॉन्शियस के जो फंक्शंस हैं उनमें से एक चीज क्या है, मैंने आपसे एक बात की थी, अनकॉन्शियस माइंड सिंबॉलिक है और अनकॉन्शियस माइंड चीजों को अपने ऊपर अप्लाई करता है। सो व्हेन यू से कि लाइक आपके तमाम मसाइल का हल अगर कोई जमात दे सकती है तो वो हमारी जमात है। ओके, दैट्स ऑल hypnotic language. So Richard Bandler, John Grinder ने जिस वक्त मिल्टन एरिक्सन को स्टडी किया, दे फाउंड कि जो लैंग्वेज पैटर्न्स हैं वो खाली मिल्टन एरिक्सन हिप्नोटिस्ट ही यूज नहीं करता, उसके बाद उन्होंने कई लोगों को स्टडी किया तो पता चला जो अच्छे सेल्समैन हैं, इंतहाई कामयाब सेल्समैन हैं, या पॉलिटिशियंस हैं, या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, या इवन मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, दे ऑल यूज दीज पैटर्न्स। ओके, कंटेंट डिफरेंट होता है, जो प्रोसेस है वो सेम होता है। ओके, और NLP इज कंटेंट फ्री प्रोसेस बेस्ड। ये जो लैंग्वेज पैटर्न्स हैं इनको हम एक दिन में मास्टर नहीं कर सकते, इट टेक्स प्रैक्टिस। मैं अभी आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग दीज पैटर्न्स और मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। माय एक्सपेक्टेशन एंड माय होप इज कि अगर आप ये चीजें आपको समझते हैं कि ये चीज आपके लिए यूजफुल होगी और आप इसको मास्टर करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए थोड़ा सा अपना टाइम निकाल कर और इनकी प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको इसका बेनिफिट पता चलेगा और तब आपको इसकी इसके ऊपर आपको एक्सपर्टीज आएगी। एक कॉन्टेक्स्ट ले लीजिए अपनी जिंदगी का, मे बी अपने बच्चों के साथ ले लीजिए, मे बी अपने किसी फ्रेंड के साथ ले लीजिए, मे बी अपने कुलीग्स के साथ ले लीजिए, मे बी क्लाइंट्स के साथ ले लीजिए, और उस कॉन्टेक्स्ट में सोचें कि अगर मैं यहाँ पर ये स्पेसिफिक किस्म के स्टेटमेंट इस्तेमाल करूँ तो मैं क्या करूँगा। एंड द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज कि उनको लिख कर कीजिए, बिकॉज लिखने से आपके जहन में जो उसका कनेक्शन होगा वो एक डिफरेंट लेवल का बनेगा। खाली जबान से बोलने के बजाय आप माइंड रीडिंग स्टेटमेंट्स, अगर फर्ज करें कि मैंने माइंड रीडिंग स्टेटमेंट्स अपने बच्चे के साथ बोलना है, ओके,
और मुझे पता है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है तुम कामयाब होना चाहते हो, मुझे पता है कि तुम तुम बहुत समझदार होते जा रहे हो, तुम तुम्हारे अंदर ये अच्छी चीज है। सो बच्चे के साथ अगर करना है, अगर मैंने इसको अपने किसी क्लाइंट के साथ करना है, अगर मैंने किसी हिप्नोसिस के सेशन में करना है, think about this, spend some time, give yourself some time and then practice. जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा चीजें आपके लिए नेचुरल होंगी। मैंने कल आपको जो पहली शुरू की स्लाइड्स दिखाई थी उसमें से मैंने सेकंड स्लाइड में ये चीज लिखी थी कि NLP is not magic but results can be magical। और मैंने उसके बाद अगली स्लाइड में आपको ये चीज कही थी कि it's like practice every day, every single day। It's not something कि हमने एक बार कर ली। एक चीज में देखता हूँ बहुत सारे लोग, हमारी गलत फहमी है, और वो गलत फहमी होती है, हम ये देखते हैं कि जी किसी ने अगर ट्रेनिंग कर ली हम समझते हैं वो एक्सपर्ट भी हो गया। देयर इज अ डिफरेंस। ओके, एक शख्स है उसने MBBS कर लिया, वो डॉक्टर हो गया, यस, मगर अभी वो एक्सपर्ट नहीं हुआ है, उसके पास क्वालिफिकेशन जरूर आ गई है, मगर ही इज नॉट एन एक्सपर्ट। सिमिलरली अगर कोई शख्स NLP प्रैक्टिशनर बन गया, मास्टर प्रैक्टिशनर, इवन ट्रेनर या इवन मास्टर ट्रेनर बन गया, उसके अंदर उस चीज को मास्टर करने में, उस स्किल को मास्टर करने में सर्टिफिकेट नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और प्रैक्टिस जो है वो एक दिन में नहीं होती है, इट प्रैक्टिस रिक्वायर्स टाइम। मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ, जो चीजें कर रहा हूँ, मैंने आई प्रैक्टिस इट फॉर years and years and years। सो मैं एंड आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज आई कैन, ताकि आप इन चीजों को समझ सकें और इन चीजों को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें, लेकिन आपको अपने हिस्से की प्रैक्टिस खुद करनी होगी। सो देन नॉर्मलाइजेशंस के बाद वी हैव व्हाट वी कॉल पेसिंग करंट एक्सपीरियंसेस। देखिए अभी हमने बात की थी रैपो में पेसिंग की। पेसिंग क्या चीज होती है कि जब जो दूसरा शख्स कर रहा है हम वो कर रहे हैं, तो वो हम फिजिकल लेवल पे कर रहे हैं, बट आप पेसिंग जो है ये आप वर्बल लेवल पे भी कर सकते हैं। पेसिंग स्टेटमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो बुनियादी तौर पर ट्रूइज्म्स होते हैं, जिनका सुनने वाले के जहन पर जो उसका रिस्पॉन्स होता है वो होता है यस। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि आज इस बूट कैम्प का सेकेंड डे है और हमने अभी थोड़ी देर पहले रैपो से रिलेटेड चीजें आज की थी, उसके बाद हमने रैप सिस्टम से रिलेटेड सेंसरी बेस्ड चीजों की, उसके बाद हमने उसकी एक एक्सरसाइज करी, और इस वक्त हम हिप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न्स या मिल्टन मॉडल लैंग्वेज पैटर्न्स कर रहे हैं। ये तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं जब आप सुनेंगे, और क्योंकि आप इस बूट कैंप में और इन वीडियोस को आप देख रहे हैं, तो आपके जहन में जो रिस्पॉन्स आएगा दैट विल बी यस 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 यस। तो ये स्टेटमेंट्स जो ये आपके लिए इस वक्त ट्रूइज्म्स हैं, ये पेसिंग स्टेटमेंट्स हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल इस वक्त जो लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं, अगर मैं ये बोलूं कि आज April 10th है, so today it is April 10th, except अगर आप ऑस्ट्रेलिया में और देख रहे हैं तो it's April 11th for you, but अगर आप यहाँ इंडिया या पाकिस्तान में हैं या मिडल ईस्ट में हैं या इंग्लैंड में हैं या अमेरिका में हैं and you're watching it right now and I say it's आज April 10th है, you will say yes it is। okay, तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसका रिस्पॉन्स सुनने वाले के जहन में yes आए, ये पेसिंग स्टेटमेंट होता है। ओके ओके, हिना का एक कमेंट है बिफोर वी प्रोसीड। वी आर गोइंग टू से लाइक आई नो दैट यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट और आई नो दैट यू नीड टू एनरोल इन दिस क्लास टू बेनिफिट मोर इन योर लाइफ। बोथ आर करेक्ट हिना। देन सो पेसिंग स्टेटमेंट जो है इनको यूज करने का एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताता हूँ। ओके, दिस इज कॉल्ड वर्बल पेसिंग एंड लीडिंग। ओके, this is how it works. So you make 4 statements which are true, pace, 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 and then make 1 statement which is a leading statement. Then you make 3 statements which are pacing statements, and then 2 leading statements, then 2 pace statements, then 3 leads, 1 pace, 3 lead, and then lead, lead, lead. Okay, let me explain this. Okay, so for example, अच्छा अब इनको pacing statements को आपस में connect करने के लिए you use what we call transition words, connectives, and, as, since, while, because, therefore. So for example, if I say you can see my face and you can hear my voice and you can feel the temperature of the room in your surrounding and you can feel the rise and fall of your chest
as you inhale and exhale. And you can feel your eyes getting heavier and heavier. And as your eyes get heavier and heavier, you can see there are other things around you. You can hear there are sounds around you. And you can feel the lightness in some parts of your body and heaviness in the others. And you can feel your eyes getting heavier and heavier and heavier. And as your eyes get heavier and heavier, you can listen to my voice and you can close those eyes and you can allow yourself to relax even more. And you can try to resist not following my suggestions. But the more you try to resist, the more you will find yourself drifting deeper. मैं थोड़ा दूसरे पैटर्न पे चला गया. लेकिन what am I using? Okay, this is what I am using. When I say you can see my face, if मैं और आप आमने सामने बैठे हों और अगर फर्ज कीजिए हम लोग ऑनलाइन भी हैं एंड आप कैमरे में देख रहे हैं and I'm saying you can see my face, आपका जो रिस्पॉन्स आएगा आपके जहन का वो क्या होगा? Yes, I can. Okay, then if I say you can hear my voice, response क्या होगा? Yes, I can. Then I say you can feel the temperature of the room on your skin. Yes, I can. You can feel the back of your back touching the back of this surface that you're sitting on. The answer is yes. Now, देखो यहाँ पर मैंने I'm using your back touching the surface you are sitting on. I'm not saying sitting on the chair because maybe someone is sitting on their bed, maybe someone is listening in their car, maybe someone is somewhere else. So if I say you can feel your back touching the back of the chair, for that person this may not be correct. So if I make a statement which is not correct, उसका response will be no, this is not right because मैं तो अपनी गाड़ी में बैठा हूँ या मैं तो अपने बेड पे बैठा हूँ, मुझे तो मेरे पीछे चेयर तो नहीं है. Okay, so I don't want that no response. So I'm using language in a way कि उसके जहन में जो response है it's yes. Okay, अब ये चार statements जो है pace, 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 pace. अब अगला जो statement है that is a leading statement. You can feel your eyes getting heavier. Now, a leading statement is something which may or may not be true, but I want my listener to experience as true. Okay? So, आपको मैंने ये ग्लास पहले भी दिखाया है और इस ग्लास के अंदर आप देख रहे हैं पानी है और इस ग्लास को के बारे में मैंने आपके सामने पहले भी कई एग्जांपल्स दिए हैं और पानी को देख देखकर आपको खुद भी प्यास का एहसास हो रहा है. Okay? So, मैंने जो स्टेटमेंट्स बोले ये ग्लास मैंने आपको दिखाया, मैंने दिखाया आपको, मैंने आपको एग्जांपल दी. सो आपका जो जहन में रिस्पॉन्स आ रहा है यस यस यस. जो लास्ट स्टेटमेंट मैंने बोला और पानी को देख देखकर आपको प्यास का एहसास हो रहा है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि लीडिंग स्टेटमेंट है. लीडिंग स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है विच मे और मे नॉट बी ट्रू बट यू वांट योर लिसनर टू एक्सेप्ट एज ट्रू. ओके, एक बड़ा पुराना इंडियन गाना है, बागों में बहार है, ये है, फूलों पे निखार है, फिर कहते हैं तुमको मुझसे प्यार है, पहले कहती है नहीं है, बाद में कहती है. Okay, that's pace, pace, pace and lead. Okay, कई साल पहले मेरी जो सबसे बड़ी बहन है उसका बेटा माशाल्लाह 26-27 साल का हो गया. वो छोटा सा था उस वक्त, उसके पास ने साइकिल ली नई जोश में बच्चे से साइकिल नई आई है, गली में खूब दौड़ा रहे हैं, कहीं पे रेत पड़ी हुई थी उसमें वो गिरे, छिल गया हाथ उनका, पैर घुटना छिल गया, रोते हुए घर आए. हसनैन नाम है उसका. वो रोता हुआ घर आया और चोट लग गई और रो रहा है. मैं वहीं पे था इत्तेफाक से, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा हसनैन बेटा आप साइकिल चला रहे थे, आप गिरे हो, आपको चोट लगी है, आपका खून निकल रहा है, इसलिए आप रो रहे हो. ओके, नाउ ये सारे स्टेटमेंट्स क्या है? स्टेटमेंट्स व्हिच आर ट्रू फॉर हिम. एंड देन आई सेड बट बेटा अभी थोड़ी देर में आप ये सब भूल कर
फिर साइकिल चला रहे होगे, फिर खेल रहे होगे. And I repeated that several times, and that's exactly what happened. Okay, now sometimes ये जो pacing and leading है, इसको हमारे यहाँ बड़ा unproductively इस्तेमाल किया जा रहा होता है. मैंने YouTube पे भी अपनी एक वीडियो अपलोड की हुई है, मेरी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग की क्लिप है. I'll give you that example. देखो, एक चीज याद रखना, हिप्नोसिस कम्युनिकेशन जो है ना, that's the most powerful hypnosis there is. कुछ लोगों के जहन में होता है हिप्नोसिस कोई ऐसी चीजें यूं करके कोई दिखाएंगे. मैंने अपनी जिंदगी में, मैं 24 साल हो गए प्रोफेशनली प्रैक्टिस करते हुए, मैंने कभी जिंदगी में किसी को पेंडुलम नहीं दिखाया. ओके, और ना ही मैं लोगों को कहता हूँ मेरी आंखों में देखो. आई डोंट हैव टू डू एनी ऑफ दैट. ओके, बिकॉज स्पेसिफिक जो स्किल है एक किसी भी हिप्नोटिस्ट की, एक मास्टर हिप्नोटिस्ट की, इट्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, so you walk in a room and you start speaking and people start experiencing trance. और trance वो नहीं है कि लोग जो यूं करके आंखें बंद करके बैठे हो. trance वो है कि वो खुली आंखों से हो and they're still accepting what you're saying. Okay, so hypnosis में जो सबसे strongest suggestions होती हैं वो suggestions होती हैं जो हमको हमारे अपने घर वालों से मिलती हैं, जो बच्चों को उनके वालिदैन से मिलती हैं. लाइक दूसरा जो है वो पत्थर मार रहा था तो मुस्कुरा रहे थे, अपने ने फूल मारा तो रोने लगे. कि वो वाली चीज होती है कि जो वो लोग जिनका हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, उनकी जो सजेशंस होती हैं, दे आर रियली रियली पावरफुल. ओके, सो ये जो पेसिंग एंड लीडिंग है, इसकी कुछ एक एग्जांपल आपको बताता हूँ. लोग बच्चों के साथ क्या करते हैं. फर्ज करो बच्चा जो है सुबह स्कूल गया, स्कूल से आने के बाद वो दोपहर को खाना खा के फिर सो गया, फिर शाम को उठ के गली में खेलने चला गया. अब बैठा वो टीवी देख रहा है, तो उधर से पीछे से अम्मा की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन उसको आती है. ओके, तुम स्कूल गए, वापस आके खाना खाया, फिर सो गए, शाम को गली में खेलने चले गए, अब बैठे हुए टीवी देख रहे हो. बच्चे के जहन में क्या आ रहा है? यस 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 यस. उसके बाद आखिरी लीडिंग स्टेटमेंट, और तुम्हें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है. ओके, और अम्मा रोज करती हैं, बड़ी मेहनत करती हैं, बड़ी कोशिश करती हैं, और जब वो हो जाता है ना, उसके बाद फिर मेरे पास लगी थी, कामरान साहब मैंने तो जो करना था कर लिया, इसको आप हैप्नोटाइज करके ठीक कर दें. मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसे बच्चों का जिनकी अम्माओं ने इतना स्ट्रांग उनके साथ हिप्नोसिस किया. ओके, हाउ डू पीपल यूज दिस इन देयर रिलेशनशिप्स? बेगम हमारी शादी को इतना अरसा हो गया, हमारे साथ ये भी हुआ और हमारे साथ वो भी हुआ, हमने ये भी तकलीफ देखी, वो भी तकलीफ देखी. बेगम मैं अब देख रहा हूँ तुमको मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं रहा है. मुझे पता नहीं, रिलेशनशिप में देखा है वैसे लाइक वक्त के साथ साथ चीजें खराब हो गई. Okay? वो अकल के अंधों अपने ऊपर हिप्नोसिस करना छोड़ो. Okay? If you are using this, use them in more positive ways. Okay? So for example, बेटा तुम सुबह स्कूल गए, स्कूल आके तुम दोपहर खाना खा के सो गए, शाम को तुम खेलने चले गए, अभी टीवी देख रहे हो, और मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा जो है टीवी में इंटरेस्ट खत्म होता चला जा रहा है, और तुम्हारा लाइक तुम बहुत ज्यादा पढ़ाई की तरफ तुम्हारा ज़हन आ रहा है. ये बहुत अच्छी बात है. इट्स लाइक, और जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो तुम्हारे अंदर ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आ रही है. एक पैटर्न ऑन है जो यहाँ पर मैंने यूज मैं कर रहा है, इसमें नहीं है, बट द पैटर्न इज दिस. द मोर यू डू एक्स द मोर दैट हैपेंस. द मोर यू डू एक्स द मोर वाई विल हैपन. जितना ज्यादा एक्स काम करोगे उतना ज्यादा वाई होगा. ओके, सो द मोर, इसको हमारे यहाँ बाय द वे बड़ी नेगेटिवली इस्तेमाल किया जा रहा होता है. क्या होता है, जितने बड़े होते जा रहे हो बदतमीज होते जा रहे हो. द मोर एक्स इज हैपनिंग द मोर वाई इज हैपनिंग. ओके, और हमारे यहाँ लोग ये पढ़ते नहीं. आपने कभी और किया, हमारे यहाँ क्या बिलीफ बना हुआ है. और रिमेंबर मैंने कहा लाइक ये बिलीफ स्टेटमेंट्स है. दैट्स द बिलीफ. जितना पढ़ोगे ना उतना ही दिमाग खराब होगा. हाँ जी, ठीक, बिल्कुल ठीक है. दिमाग खराब किसने करना है? पढ़ो ही नहीं, और हमको पढ़ाई से शौक खत्म, सबका दिमाग दुरुस्त हो गया है. ओके, कितने ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ाई किस लिए करते हैं? सर्टिफिकेट. सर इसका सर्टिफिकेट मिलेगा. Can you imagine this? Like people do a one-to-one session with me, a coaching session, and सर इसका सर्टिफिकेट होगा. Okay, so इंटरेस्ट जो है वो सर्टिफिकेट में. इसमें डिग्री होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन है, स्किल है, नहीं है कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट है ना, फेसबुक पे भी दिखाना है. The more you learn, the better you will become. The more you think, the more the better you will be. As you learn these things, your life will keep getting better.
You are learning NLP and you want to improve your life, which is a good thing, because there are very few people who actually learn to improve their lives. And that means you will stand out. You will stand out from the crowd. And that means you have certain skills, you have some abilities that you can use to help not just yourself, but a lot of people around, people who need help. And since you are learning all of these things, you will find कि इन तमाम चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप अभी गौर करें तो मैंने अभी पिछले जो 5-6 स्टेटमेंट्स अंग्रेजी में दिए हैं, वो सारी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स थी इन hypnotic language patterns की, Milton model language patterns की. Okay. So, any questions about this, by the way? कोई सवाल किसी के ज़हन में हो? Okay, so I hope you have enjoyed this. We are at the end of this session. इसमें कुछ question answers हैं. I'll run that. But if you have any questions, अभी तक जो कुछ इसमें cover किया, you can type that in your chat box. If you're watching it live, the video, it will be available for next 24 hours. So it's like until tomorrow 7:30 p.m. it will be on my YouTube channel. So if you have any questions, any comments, you can type them. You can type your comments right now. If you have any questions, you can type them right now. And I will see if I will answer your questions. Okay, so feel free to post your questions. And if you're in my groups, any of my groups, I have a group for men and a group for females, for women. If you are in that group, share your comments in that group. So other people know. And if you have any questions, you can ask as well. Lekin, if you're watching it on YouTube, post your comments here or your questions here. And inshallah, if I can, I will answer. मेरी जो पिछली videos थी, they're already gone. You cannot see them. If you've missed. I'm sorry about that. Be there next time. This is available for next 24 hours. If you're watching it, great. If you miss it, you miss it. Okay. So just quickly, I'll run the question answer session, and then inshallah, we'll announce for you the next gift that we have. Okay. So let's continue with this. लास्ट में कहा ना, the more you do X, the more you will get the Y. इसमें मतलब क्या है कि इसको मतलब ये भी इसी तरह का स्टेटमेंट है कि हम किसी को कहेंगे कि जितना आप लर्न करेंगे या जितना आप पढ़ाई करेंगे, the more success you will get. इस तरह वाली सीन होगा मतलब इसमें. This is a statement. Yeah, that's the pattern. देखो इस pattern में the more you do X, the more Y will happen. The less you do X, the less Y will happen. The more you do X, the less Y will happen. The less you do X, the more Y will happen. चारों इसके अंदर possibilities आती हैं. जैसे हम cause and effect में भी यही चीज है. X होगा तो Y होगा. X होगा तो Y नहीं होगा. X नहीं होगा तो Y होगा. X नहीं होगा तो Y भी नहीं होगा. Okay, so the more you struggle, the more you do hard work, the better you will become. The better will become. Okay. Yeah, the more you work, the stronger you will become. The more you learn, smarter you will become. Okay, the less you think, the more relaxed you will be. Okay. Okay. Thank you. So it doesn't matter. जितना ज़्यादा फलानी चीज़ होगी, उतनी ज़्यादा फलानी चीज़ होगी. जितनी कम फलानी चीज़ होगी, उतनी कम फलानी चीज़ होगी. जितनी कम ये चीज़ होगी, उतनी ज़्यादा वो चीज़ होगी. जितनी ज़्यादा ये चीज़ होगी, उतनी कम वो चीज़ होगी. Okay. चारों डायरेक्शंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अंदर आप you can put anything in that, anything you want. Okay. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट जो चीज़ है, मैं वो देखता हूँ कि लोग अक्सर चीज़ों को नेगेटिवली इस्तेमाल कर रहे होते हैं.
जैसे मैंने आपको मिसाल दी ना, जितना ज्यादा पढ़ोगे ना उतना ही दिमाग खराब हो, जितना सोचोगे उतना ही परेशान होगे. Wrong. Please don't do that. Okay, so use these things very carefully. कभी आपने सोचा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि इंसान की जबान से लाइक कोई ऐसे अल्फाज वो कह देता है जो उसको जन्नत में ले जा सकते हैं, और कुछ अल्फाज ऐसे कह देता है जो कि उसको जहन्नुम में ले जाते हैं, और उसको अंदाजा भी नहीं होता अल्फाज की पावर का. थिंक अबाउट दिस. हमने अल्लाह को देखा है क्या? हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? हमारा ईमान जीना मरना जो है वो किन चीजों पर है? कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम है. अल्फाज की ताकत जो है उसका हम अंदाजा नहीं कर. हमारे रिश्ते जुड़ते हैं अल्फाज से, रिश्ते टूटते हैं अल्फाज से, लेकिन इन अल्फाज के क्या असरात हैं? एनएलपी में वी डोंट टॉक अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन. एनएलपी में वी टॉक अबाउट इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन. और ये इतनी इन डेप्थ चीज है. मैंने आपको जैसे कहा, मेरे जो एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग होती है उसमें हमारा तकरीबन पूरा एक हफ्ता सिर्फ इस सेक्शन के ऊपर गुजरता है. अगर लाइव प्रोग्राम मेरा 7 दिन का प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग है, उसमें हमारे 2 दिन तकरीबन जो है वो इस टॉपिक के ऊपर गुजर रहे होते हैं. इतने इन डेप्थ टॉपिक्स हैं. आई एम जस्ट शोइंग यू लाइक द टिप ऑफ द आइसबर्ग. ये जस्ट नोटिस कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर. जी Moaz, you have a raised hand. You want to say something? You can unmute yourself, Moaz. जी कामरान साहब, अभी बात हो रही थी रिगार्डिंग, मैंने अनम्यूट कर दिया, आपको आवाज आ रही होगी. जी आवाज अभी बात हो रही थी जितना ज्यादा एक्स होगा उतना ज्यादा वाई होगा, समथिंग लाइक दिस. ठीक है जी. तो वाज इट वाई जो है वो क्या कॉन्सिक्वेंस था एक्स का? वाज दैट रियली मेंट के वाई हमेशा कॉन्सिक्वेंस होगा हमारे एक्स का, कि हम जो रिएक्शन दे रहे हैं या जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं या हम जिस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस होता है ना हर चीज का, कि मैं किसी को काउंसलिंग कर रहा हूँ या मैं किसी को समझा रहा हूँ. राइट. सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि क्या होगा. सो मिसाल के तौर पे जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा प्यास लगेगी. अभी रमजान आ रहे हैं ना, सहरी में आपने सुना होगा अम्माएं बच्चों को कहती हैं बेटा ज्यादा नहीं पियो, बस जितना ज्यादा पानी पियोगे ना उतनी ज्यादा प्यास लगेगी. ओके, सो that's also the same pattern. इसी तरह से जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा तुम्हारे जहन एक्टिव होगा. हम इसको नेगेटिव में भी ले जा सकते हैं और पॉजिटिव में. वाई? सवाल अब यहाँ पे क्या आ जाता है एनएलपी के पर्सपेक्टिव से. नो व्हाट यू वांट. आप उसका जहन किधर ले जाना चाह रहे हो. वो एक्स क्या चीज है? एक्स वो चीज है जो वो कोई शख्स कर रहा है. इट्स अ ट्रूइज्म. सो फर्ज करो कोई शख्स पानी पी रहा है, जैसे मैं मिसाल दे. ओके, सो जितना ज्यादा पानी पियोगे, वो तो ऑलरेडी पी रहा है, अब आपने उसको किस चीज से लिंक करना है. वाई आप डिसाइड करेंगे. वाई इज अ लीड यू वांट. वेयर डू यू वांट द, उतना ज्यादा फलानी चीज होगी या उतना कम फलानी चीज होगी. यू कैन से जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना कम प्यास लगेगी, या जितना ज्यादा पानी पियोगे उतनी ज्यादा प्यास लगेगी. जहन जो है उसको अगर एक्सेप्ट कर लेता है, दैट्स ट्रांस. मैंने आपसे कल एक चीज कही थी कि मेरी जो डेफिनेशन इतने सालों में हिप्नोसिस, आई हैव बीन लर्निंग हिप्नोसिस सिंस आई वाज 13. नाउ आई एम 50. सो जो चीज मेरी समझ में आई हिप्नोसिस की, मैंने आपसे कल जिक्र किया था. इट्स सिंपली दिस. हर वो बात, हर वो आइडिया, हर वो नोशन, हर वो कॉन्सेप्ट, हर वो चीज जिसे हमने बगैर सवाल एक्सेप्ट किया है, वो हिप्नोसिस है. Okay, so this was just a little bit on Milton model. As I said कि ये patterns मैंने आपके सामने जो दिए हैं, these are some of the examples, not all of the examples. And my hope is that now you're developing some appreciation, some understanding कि language कितनी useful और कितनी powerful चीज है. Okay, now let me stop recording here because we'll start the next section. Okay, so neuro
linguistic programming, programming brain through language. डीप अंडरस्टैंडिंग आती है अपने मुतालिक, अपनी ज़ात के मुतालिक और दूसरों के मुतालिक. This is one of the first things in my courses. ये जो चीज़ I have used one of your techniques in my sales and it closed. अब लगता है कि जो मेरा एक स्किल लेवल है शायद मुझे वो पहले महसूस नहीं हो रहा था. क्योंकि I feel like I need it. क्योंकि because I can, look, I am way better than I thought I would be, you know. If you're getting training in Pakistan, I want to recommend that you train with Kamran. Kamran Sultan. He is fantastic, and I highly recommend him. Highly recommend. If you want to learn NLP, learn from the best in Pakistan, learn from Kamran. I transformed as a human being, as a mother. मेरी पेरेंटिंग बहुत इम्प्रूव हुई विद माई डॉटर्स, माई रिलेशनशिप इम्प्रूव्ड. इसके अलावा मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशनशिप्स बहुत इम्प्रूव हुए. यहाँ से अपनी लाइफ को पीछे की तरफ देखता हूँ, 5 साल पीछे की, और आज जब मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो एक डिफरेंट इंसान की सूरत में अपने आप को देख रहा हूँ. Hello, this is Dr. Richard Bandler. This is John Laval. I'm the president of the Society of NLP with Richard Bandler. Hi, I'm Owen Fitzpatrick, co-author of the book Memories with Dr. Richard Bandler and co-founder of the Irish Institute of NLP. And I'm very delighted to highly recommend Kamran Sultan of the First Institute of Dynamic Learning in Pakistan. Kamran is someone that I've seen train. I've worked with him and taught a workshop with him in Pakistan. And he's someone that has exquisite skills, one of the best NLP trainers I've seen. And it's an honor to work with someone of his caliber. If you think about Kamran Sultan, he is fantastic, and I highly recommend him for doing the seminars in your country. And I also want to say that he's been doing NLP for quite a long time, actually. Was trained by Richard many, many years ago. He's come to the United States to update his training, and he's really a great guy. If you've got the opportunity to study with someone like him, like Kamran in Pakistan in NLP, you won't find any better. So I highly recommend, if you want to learn NLP, learn from the best in Pakistan, learn from Kamran. Okay, so go see Kamran Sultan. He's a great guy, and he does fantastic programs. And if you're getting training in Pakistan, I want to recommend that you train with Kamran. Okay, everyone, thank you very much for joining. Ramzan will tell you about our next gift that you will be receiving, inshallah ta'ala, the next training that we will be offering, running in the same way, inshallah. So Ramzan, it's over to you. So here is the gift number 3 for you. I'm sure कि जो पिछले 2 बोनस सेक्शंस आपने अटेंड किए हैं, बहुत कुछ लर्न किया होगा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा. ये 3rd बोनस आप लोगों के लिए है. डिस्कवर पावरफुल एनएलपी टेक्निक्स, रीप्रोग्राम योर माइंड बाय कामरान सुल्तान, लाइव ऑन यूट्यूब ऑन मंडे. ये प्रोग्राम आइंदा पीर को मई 8 शाम 7:30 बजे लाइव ऑन यूट्यूब पर पेश किया जाएगा. तो आई होप कि इसको भी आप बहुत इंजॉय करेंगे, इसको भी आप लर्न कर रहे होंगे. प्लस एक एडिशनल अनाउंसमेंट आपके लिए ये है कि जैसे कि कामरान सर ने अभी बताया कि इंशाल्लाह लाइसेंस्ड एनएलपी प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग जो कि 22 में से स्टार्ट हो रही है, आई एम श्योर इसके बारे में आप बहुत कुछ मजीद जानना चाहते होंगे. तो आपकी तमाम क्यूरीज, चाहे वो इस प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन के हवाले से हो, फाइनेंसेस के हवाले से हो, बोनसेस के हवाले से हो, तो कल दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक मैं लाइव जूम पर अवेलेबल रहूंगा और इसका लिंक आपके ग्रुप्स में आपको शेयर कर दिया जाएगा. कल 2 से 3 बजे तक आप इस ट्रेनिंग के बारे में आपका कोई भी कंसर्न हो या मजीद आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कल सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं. सेशन के अलावा भी अगर आप इन ट्रेनिंग्स के बारे में या कल और आज जो आपने ट्रेनिंग देखी है या मंडे को भी जो देखेंगे उस बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, आप कामरान सर से भी बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं. उनका सारी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है. प्लस आप में से वो तमाम अफराद जो कामरान सर के स्पेशल ग्रुप्स के अंदर शामिल होना चाहते हैं,
जो कि लाइफ कोचिंग फॉर मैन का एक डिफरेंट ग्रुप है और लाइफ कोचिंग फॉर विमेन ये डिफरेंट ग्रुप है। और इन ग्रुप्स के अंदर आप अपना कोई भी जो जिंदगी का इश्यू है, कोई चैलेंज से अगर आप गुजर रहे हैं तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। आपको उस पर बहुत सारी टिप्स जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, कोचिंग की जाएगी बाकायदा उस ग्रुप के अंदर। अगर आप मुझसे भी राब्ता कायम करना चाहते हैं तो मेरे नंबर्स भी इस वक्त आपके पास मौजूद है। सो थैंक यू वेरी मच आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का जिन्होंने हमारे साथ कनेक्ट हुए, और ओवर टू यू कामरान सर। Okay, thank you, Ramzan. So thank you everyone who joined us today. I hope you find this useful. As I mentioned earlier, this video will be available for next 24 hours. That's until tomorrow, 7:30 p.m. Pakistan time. And that's like 10:30 a.m. here in the US. So watch it again if you want. Take notes अगर आपने अभी नहीं लिए हैं. You know, इन चीज़ों को repetition, and NLP में हम एक चीज़ कहते हैं, repetition is the mother of skill. And your mind needs repetition. कोई भी चीज को fully grasp करने के लिए, you watch it again, you will find something new in this. You watch it again and you will find something new in this. And you start applying this and you will find you will become a really powerful communicator, if you want to be, by the way. So thank you very much, everyone. Inshallah ta'ala, I'll see you next time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.